शिजली नाही words.
सर हमको आप म्यूट अनम्यूट कर दिया था बस कोई दिक्कत नहीं। Very good afternoon, everyone. Honorable Resource Person, Ms. Shweta Chaurasia, Co-founder and Director of Vikalp Education, Nagpur. Dr. Praveen Joshi, Director, Prerna College of Commerce. Dr. Ujjwal Lanjewar, Principal, Prerna College of Commerce. Faculty members and dear students. I, Dr. Sapna Ghutke from Department of Commerce and Management, feels privileged to extend my warm welcome in today's webinar on interview techniques. This webinar is organized by the Training and Placement Cell of Prerna College of Commerce in collaboration with Vikalp Education, Nagpur. Dear students, today's webinar is conducted for one small vision, and that is when you walk out that gate of our college. It won't be the last time. Every time you return, you will bring in stories of how your teachers molded you to reach the heights and summits of new horizons in your life. As you complete your academic life, the outside world is not a walk in the park. There are many responsibilities and you will feel burdened, but that is all a part of life. Discover yourself, explore your strengths, and work on your limitations. The world is yours. Dear students, as you pass out your final semester examinations, many of you will look for the jobs and some will look for their higher education. And in both the cases, you need to appear for the personal interview. For the return test, you know the syllabus. You have the paper pattern. You know the mode of writing the paper, but this is not the case with the personal interview. There is no standard format. So in such a situation, how to successfully get through with the personal interview? कोणती सायकल पाहिजे कोणती दे तेवाला घेऊन जा Everyone, please mute yourself. Dear students, as you pass out your final semester examination, many of you will look for the jobs and some will look for their higher education. And in both the cases, you need to appear for personal interview.
For the return test, you know the syllabus, you have the paper pattern, and you know the mode of writing the paper. But this is not the case with personal interview. There is no standard format. So in such a situation, how to successfully get through with the just to find out the answer to this question, today's webinar is organized. Today we have with us an eminent personality as a guest speaker, Ms. Shweta Chaurasia. Ms. Shweta Chaurasia is Master of Business Administration in HR and Marketing Management from IILM Academy of Higher Learning, Rajasthan University. Ms. Shweta Chaurasia is a corporate trainer and certified psychometric trainer. Ma'am is also a passionate soft skill trainer with more than 12 years of experience in imparting knowledge to 20,000 plus students at various renowned institutes for CET, CRT, banking, and human resource training. Ms. Shweta Chaurasia was a guest speaker in the faculty development program at various management colleges in Mumbai and Pune. Has also organized a leadership development program at Western Coalfields Limited, Nagpur. So now I request Ms. Shweta Chaurasia ma'am to take charge and enlighten the budding professionals. Over to you, Shweta ma'am. Thank you so much, ma'am, for the wonderful introduction. As you have rightly said, that students will be soon coming out from the college and they have to face the corporate world. And it is not the cakewalk that actually it seems when they are in college. So these are the skill sets like which have been required, which they have to improve with time so that even in this tough competition, they can shine and they can actually, highlight the name of their college and the professors that were being taught to them. So let's begin with this session. I myself, Shweta Chaurasia, I will be taking you through the interview techniques. At the same time, I will also help you to understand how communication is important and how you have to improve on those lines. Because most of the time when we talk about communication, there is a misconception in our mind. Students, please mute yourself because it is taking me too long to mute each and every one of you. It's a sincere request. Please mute yourself. Okay, so basic misconception which may come in your mind when it comes to communication. You all think that communication only means English. English is just one language in which you have to communicate. Communication is all about how effectively you pass on your message to the others. Okay, so it could be in any language per se, but then most importantly, you need to understand that communication is something where you have to excel yourself and you have to do it on a regular basis. So interview technique is nothing but it is to check your communication along with other skills that we will be discussing in this session. Now, before I move ahead, can anybody tell me what is the important part of communication? What is the important part of interview technique as such? Anyone who can unmute or can set the answers in the chat box? I can read it and I can hear you. What is important for interview techniques? I'm confident. Confidence, okay. Confidence, body language, communication, fine. Other than this? Ma'am, eye contact. Eye contact, good. Being patient, very good. Ma'am, to deliver the perfect message. Okay, deliver the perfect message, wonderful. The way you speak, okay, good, Tushar.
Fine. Any other point that is coming to your mind? Please mute yourself unless you're not answering. Okay, how many of you have heard about the word resume or CV? Ma'am, I heard. Okay, Resume you is can a simply raise your hands if you've heard of this term resume or CV. Fine, 1, 2, I'm counting. Please raise your hands. 5 students, 6, 7, 8. Okay, I can assume कि 50% ने तो सुना है. Yes. Okay, so what is the basic difference between resume and CV? Who will tell me what is the basic difference? What is the basic difference between resume and CV? Okay, resume is used for job interviews. How about CV? That is curriculum vitae. You all must have heard of that term also. See, initially my question was very simple. I have just asked you that why, like what are the skills or what are the basic things which are required for interview techniques. Okay, because my entire session today will be on interview. Yes. Fine. What is the basic difference? You can type it in the chat box also. Basic difference between CV and resume. Okay, let me just clarify this. Resume is basically for freshers and CV is for the people who have work experience. Okay, so accordingly, you can prepare if you have any work experience. That to be, you need to understand it should be for at least 6 months. If it is less than 6 months, it is not counted as your experience. Okay, so if you have more than 6 months experience, it will be automatically converted into CV, that is curriculum vitae. If you do not have any experience, if you are fresher, you have to prepare resume. Now, one basic point that comes to everybody's mind when we discuss about interview techniques or resume or the skill sets which are actually being required by the corporate when you are moving ahead with your preparation. Okay, so it is just that do we have to mention resume or CV as the heading? Okay, so let me just clarify this. You do not have to mention this. You do not have to mention whether you are preparing a resume or you are preparing a CV. You just have to start with your name. Okay, so let's begin. Let's learn the skill sets which are actually been important. I'm pretty sure through this session, we are going to learn a lot, which will help you surely in your campus placements. So, personal interview techniques. First of all, as we all have understood one thing from last 2 years, most of your seniors or super seniors, they have gone through this sort of pattern, okay, which is being shown on the screen. So how it is different than the one that we used to do in 2019? How it is different? Obviously, one common point is now all the interviews are happening virtual, right? So a girl sitting in front of a laptop and she is appearing for the interview. So how it is different than the one that going to the particular office and then appearing for the interview? What are these extra skill sets which are being required? Quickly, because we have to cover so many things, I'll be helping you out to understand what are the important questions which can be asked to you and various other things which will really help you to boost your interview skill techniques. So quickly tell me how it is different than the one going to the office and then facing the interview.
Do you think it is easy to sit in front of a laptop and appear for the interview, or it is easy to go to the office and appear for it? It is easy to laptop. Okay, it is easy through the laptop. Okay, fine. क्यों? क्योंकि अभी आप लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं किसको कुछ पता नहीं चल रहा. Is it so? You are comfortable sitting at your home? Maybe. Yes, ma'am. Yes. अभी तो इंटरव्यूचे सांगणार होती ना काही कशा आहे ना. Yes. Do you really feel that is why it is easy? घर से बैठ के आराम से हम लोग अपने comfort area में we can do that. No, ma'am. Then what are the reasons? Okay, Tushar is saying face-to-face communication is way better to communicate. Okay, fine. Yes, quickly justify your points. Because आपका खुद का भी एक understanding होगा ना before I build upon it. मैम फेस टू फेस अगर जब इंटरव्यू लेते हैं तो थोड़ा नर्वस होते हैं, और फिर घर में बैठ के जब हम लोग देते हैं लैपटॉप से तो थोड़ा वो नर्वस वैसा फील नहीं होता है ना. अच्छा, घर पे बैठ के दोगे तो नर्वसनेस नहीं दिखेगा सामने वाले को अगर आप नर्वस भी हो तो, या सामने मम्मी को बैठा दोगे तो मम्मी को देख के बस हंसते रहोगे. इज इट सो? मैम थोड़ा घर से बैठ के नहीं इजी थोड़ा हो जाता है. अच्छा, इजी हो जाता है. ओके, बट नेटवर्क इशू भी होता है, अलग ही कॉन्फिडेंस आता है. अच्छा, घर पे बैठ के अलग ही कॉन्फिडेंस आता है. ठीक है. सो जितने भी लोग घर पे बैठने वाले कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, आई थिंक यू ऑल आर लुकिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम, राइट? है ना, ऐसा कुछ ऑप्शन मिल जाए घर से बैठ के सब काम होता रहे और पैसे आते रहे बैंक बैलेंस में. यस मैम, कैसे से हो Yes, जाता है. ma'am, I tried. ओके, फाइन. बहुत सारे लोगों ने दिया भी होगा, है ना, वर्चुअल इंटरव्यू. ओके, इनिशियली यस. इफ आई टॉक अबाउट 2020, जब लॉकडाउन एकदम से लगा था, व्हेन यू आर नॉट यूज्ड टू दिस पर्टिकुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, उस टाइम शायद थोड़ा सा फेस करने को दिक्कत होती थी. बट नाउ आई एम प्रीटी श्योर यू ऑल आर कॉन्फिडेंट. यस. So now since you all are confident with facing the screen, can you all open your videos? I just wanted to see all your cute faces. I'm giving you 2 minutes time. Till then I will be continuing with my portion. You all can settle down and turn on your videos so that I can see your faces, your cute, lovely faces and charming faces, so that it will give me another sort of energy. Because, you know, at times it becomes really difficult to take sessions when you are sitting at your home. Specifically, I talk about the faculties who are actually doing it. You can understand this is the same which is happening with your professors as well. Okay, when they are unable to see the students, they're just finding it कि हम खुद को ही पढ़ा रहे हैं. ठीक है, because you have turned on your video and you're looking at yourself, you're staring at yourself, and there's no student who has turned on the video. ठीक है, तो ये actually एक problem होता है. But then try and understand, students, for personal interview, if you are going for virtual, this sort of exemption will not be given to you. Okay, you won't be allowed to turn off your video and then appear for the interview. This is the first point that you have to keep in your mind. Okay, so अगर आप seriously इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन सोच रहे हैं, अच्छी कंपनी में अच्छी प्रोफाइल के लिए, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, देन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू ऑल नीड टू रिमेंबर इज फेस योरसेल्फ. Be confident with yourself, because when you are turning on your camera, you will be looking at yourself, right? अभी कुछ लोगों ने turn on किया and they have found कि उनके hair style proper नहीं है, या maybe something is missing on their face, so they have quickly turned off. Okay, so this is something which happens usually when we sit for the interview as well, and at that point in time we become nervous, right? So you need to understand one thing: we have to face ourselves confidently, and at the same time we have to deliver which is there in our mind. ठीक है, तो अभी डिलीवरी तो नहीं है, ऑब्वियसली आपको कुछ बोलना नहीं है until unless I am asking you any question, but then this is not going to happen with interviews. Interviews में 90% of the time किसको बोलना पड़ेगा?
आप ही लोगों को बोलना पड़ेगा. Only 10% of the time interviewer will be asking the questions. तो आपको साथ में ये भी प्रैक्टिस करना है. ठीक है. So here there are few things that you have to keep in your mind when you are sitting virtually for the personal interview. At the same time, I will also discuss the points that you have to keep in your mind when you are going to any particular office for the personal interview. So here, the first important point is always sit with paper and a pen. This is the problem that you all face, because right now also I'm pretty sure सब लोग टिक के आराम से बैठे होंगे कि ठीक है कोई तो प्रवचन चल रहा है ना, सुन लेते 1 घंटे के लिए, शायद कुछ ज्ञान वहां से मिल जाए हमको. Okay, so this is the sort of attitude we all have developed. So just don't forget that whatever points are being discussed either from the experts who are coming in or by the faculties who are regularly preparing you, you always should have a habit of keeping a pen and a paper handy with you. Okay, you do not know कब कौन आपको आपके important जो आपके point of view से जो important चीजें हैं वो उन्होंने बताई. And I'm pretty sure we are not कंप्यूटर माइंडेड. ठीक है कि हमको जो आज के 4 दिन पहले बताया है वो हमें अभी भी याद है. बट इफ यू आर राइटिंग इट, आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. So you should always keep a paper and pen, because there could be some questions which can be lengthy. कुछ questions interviewer आपको थोड़े lengthy भी पूछ सकते हैं, situational based भी questions पूछ सकते हैं. So if you are not writing the bullet points, ये आपके लिए बहुत difficult होगा recollect करना. And every time you cannot ask your interviewer to repeat the same question again and again. Okay, because you need to understand 10-15 मिनट से ज्यादा आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला, और वो 10-15 मिनट में आपको प्रूफ करना है that you are the right candidate for that particular job. Okay, so this is one point. Now another point which is very crucial, and I am looking forward for the answers from you. The girl is sitting with a cell phone with her. So do you really feel कि cell phone के साथ बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? What do you think? फोन अपने साथ रख के बैठना चाहिए इंटरव्यू में या नहीं बैठना चाहिए? Okay, how many of you say कि बैठना चाहिए? Just raise your hands. We should always keep our cell phones with us. Okay, Natasha. Only Natasha is saying we should sit with our cell phones. Okay, Roshni is also saying the same. Fine. सिर्फ 2 लोग out of 97 students. If I exclude myself, okay, Nikhil is also saying कि cell phone के साथ बैठना चाहिए. Okay, can you tell me the reason why we should sit with our cell phone? Or rather, I should start with the opposite of it, right? नहीं बैठना चाहिए, because I'm finding the answers in the chat box also. There are few students who are saying कि we should not sit with our cell phones. So we'll start from there. क्यों नहीं बैठना चाहिए? Yes, quickly. Then we'll come to this कि क्यों बैठना चाहिए. क्यों नहीं बैठना चाहिए? Because majority of you are saying कि नहीं बैठना चाहिए. Anyway. Ma'am, because of distracting. Okay. Because it will distract you. Fine. Yes, ma'am. If you will going to sit with a cell phone, it I mean by mistake, if we will not able to make it in the vibration mode, so we may get distracted or disturbed, and also at the same time our impression will going to be bad, because we give importance to the cell phone rather than our interview. Okay, fine. तो मतलब ये है कि अगर सेल फोन लेके बैठे तो इट शोज कि हम कितने यूज्ड टू हो चुके हैं अपने सेल फोन के कि हम एक सिंगल मैसेज भी नहीं मिस कर पा रहे हैं ना. अगर वाइब्रेट पे रखा, लेट्स से उसने वाइब्रेट किया तो सडनली हमारा ध्यान उधर चला जाता है. दिस इज व्हाट आई कैन एक्चुअली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम योर आंसर. फाइन. और क्या? I can see some answers in the chat box also. Tisha is saying we should not, because due to mobile there will be disturbance. Okay. Rohini is saying we will be disrespectful towards them. Bad impression on interview. Sakshi. Okay. Afsha is saying phone साथ रखना चाहिए silent पर, but phone handbag में या pocket में रखना चाहिए. Okay. Fine. ठीक है.
और कोई है अगेंस्ट वाला? नहीं बैठना चाहिए सेल फोन लेके? So I think I have understood one common point from all of you is that you will be distracted in and all, right? Fine. So this shows कि हम लोग बहुत addicted हो गए हैं फोन की. Don't you think so? From your answers, can I identify this? This shows your addiction. Now this would be coming to your mind कि मैम कौन addicted नहीं हुआ है 2 साल में, ये बता दीजिए. ठीक है? So now we'll just quickly listen to the students जिन्होंने ये बोला है कि सेल फोन साथ में रखना चाहिए. So quickly tell me why we should keep the cell phones with us. Then I will tell you my point of view कि रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए. Yes. Quickly. हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है. जल्दी जल्दी बताओ. मैम क्यों रखना चाहिए? interview is not a ma'am, interview is not a every day. It is a only one day to your chance your create your world and your job. It is not good for your impression for Okay, so you should not keep this, right? ये आप बोलना चाहते थे. yes. हाँ, मैं ये पूछ रही कि क्यों रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए, ये तो हमने समझ लिया. एवरीबडी सेइंग कि उससे डिस्ट्रैक्शन होता है, बट क्यों रखना चाहिए ये भी कुछ लोगों ने बोला है कि रखना चाहिए फोन हमें अपने साथ. यस पल्लवी, यू वांटेड टू स्पीक एनीथिंग अबाउट दिस? shows addiction and also disrespect or wrong message. Okay, fine. सब अगेंस्ट वाली है मैक्सिमम. ओके, फेवर वाला कोई है जो बोल रहा है सेल फोन रखना चाहिए? Fine. So let's discuss what is my point of view over here is specifically what I feel is कि cell phones आपको अपने साथ रखना चाहिए. ठीक है? I will also tell you कि क्यों रखना चाहिए. Just because you need to understand कि cell phone always have an option of silent, isn't it? उसको vibrate पे ही करना है, ये किसने बोला आपको? ठीक है? You can always keep it on a silent mode. आप उसको उल्टा करके भी रख सकते हैं so that अगर आपने उसकी लाइट अगर ऑन करके रखी है so even that won't be visible to you. But the reason why we should keep the cell phone is I hope you all have used mobile hotspot on that. Use किया है आप लोगों ने? Yes, ma'am. ठीक है? So don't you think it is the alternative to your internet connection if at all you loses in between? So let's say आपके घर पे वाईफाई है and due to any reason वो वाईफाई वर्क नहीं कर रहा because technical कब क्या glitches हो जाए, you are not aware of that fact, right? So you should always keep your phone handy in case अगर आपका वाईफाई का connection lose हो जाता है. So you can quickly start your mobile hotspot. You can ask the interviewer. You can quickly message the interviewer that due to some connectivity issue, I will be rejoining you in next 2 minutes. अब let's say आपने अपना फोन जो है वो कहीं ऐसी जगह छुपा दिया है just because you don't want to distract yourself. So what will happen? आपको 2-3 मिनट तो फोन को लाने में लग जाएंगे and you will be panicked at the same time. But if you are mentally prepared कि हाँ कभी भी टेक्निकल इशू हो सकता है और मुझे फोन की जरूरत पड़ सकती है, फॉर दैट मैटर आई हैव केप्ट माय फोन बिसाइड्स मी, सो यू कैन डू दैट. यू कैन एनी टाइम यूज इट. डोंट यू थिंक सो? डू यू ऑल एग्री विद मी? Quickly raise your hands if you all agree with me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are agreeing. Okay. Yes, ma'am. Perfect. So I think you all got ऑनलाइन में बोल रहे हो. हाँ, दिस इज फॉर द वर्चुअल. मैं ये स्क्रीन ही आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ ना, जहाँ पे एक लड़की बैठी है वर्चुअल, वो इंटरव्यू दे रही है. ऑफलाइन पे अभी हम नहीं आए हैं. वी विल टॉक अबाउट ऑफलाइन इंटरव्यू लेटर, जहाँ पे कुछ और पॉइंट्स है जो हम ध्यान में रखने हैं. बट देन राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्चुअल इंटरव्यूज, और अभी भी वर्चुअली ही हो रहे हैं इंटरव्यूज मैक्सिमम कंपनीज में. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कप इज बीइंग केप्ट अगेन. So what do you feel? What do you think? Is it required?
What? A cup is also being seen in the screen. आपको सबको कप भी दिख रहा है? Yes, ma'am. तो कप की क्या जरूरत है? ये स्क्रीन पे जितनी भी चीजें हैं ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब एक एक करके समझनी है अच्छे से. Yes, what is the requirement of cup? मैम वो कप में रखने के लिए। Sorry? मैम जो कप में कॉफी हाँ. रहेंगी वो मेंटली जो अपना स्ट्रेस रहेंगे वो थोड़ा कम कर पाएंगे, वो भी हो सकता है. अच्छा, तो आप इंटरव्यू देते देते कॉफी पीते रहेंगे? नो मैम, पहले पहले अच्छा, पहले मतलब, पी लोगे. हाँ और हाँ. फिर वो कप को वहीं रखे रहने दोगे? जस्ट वो कप को देख देख के याद करोगे कि अच्छा मैंने कॉफी पी थी एंड आई शुड बी एनर्जाइज. नो मैम, मतलब मेंटली स्ट्रेस थोड़ा कम होगा, मतलब पहले स्ट्रेस रहेगा ना वो कम होगा. अच्छा ठीक है. स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग चीजें भी यूज करते हैं, तो वो सब रखना चाहिए क्या वहां पे? नो मैम. Jokes apart, now here this cup is nothing but it is having water in that. ठीक है, तो ये जो कप है उसमें टी या कॉफी नहीं है. Don't have the misconception in your mind. It is just a water which you can keep handy with you. It can be in a glass, it can be in a cup. ठीक है, whatever you feel like. Just you need to understand because you all are freshers. तो कई बार ऐसा होता है हम नर्वस हो जाते हैं, बहुत बार बोलते बोलते हम अटक जाते हैं. ठीक है, so you can anytime have a sip of water and you can again re-energize yourself, okay, to speak further. और in between कैसा होगा, इंटरव्यूअर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उस केस में आप एक sip of water you can take it and you can be refreshed again. Fine. So you should always keep a glass of water or a cup of water besides you. Now, most importantly, the girl has also kept 2-3 pencils behind the laptop. Can you all see that? Okay, so this is also required. मतलब अगर आपका पेन चलते चलते बंद हो गया, so you should always have the options. तो फोन भी क्या है, एक alternate option था, ये भी एक alternate options है. So you should always keep the alternate options available with you. Now, most importantly, in virtual interview, आपका कम से कम 1/4 पार्ट तो दिखने ही वाला है स्क्रीन पे, as you all can see me also. Okay, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अपना चेहरा थोड़ा सा चार्मिंग रहे, रिफ्रेशिंग रहे. ठीक है, हाँ, नीचे अगर आपने लोअर पहन के भी रखा तो nobody is going to notice that. Fine, nobody is going to ask you कि आप खड़े होके दिखाओ what you have wore. ये of course आपको help, मतलब this you cannot do when you will be going to the office. But then here you need to understand one thing कि आपको अपने hairs जो है वो properly tied रखने हैं. Then at the same time for boys आपका clean shave होना चाहिए. Okay, जो भी एक professional requirement होती है that you all have to fulfill, right? हाँ, most importantly, if you are putting your headphones, earphones, that is much better when you are sitting for the personal interview, so that आपका जो repetition होगा ना वो avoid होना शुरू हो जाएगा. Because अगर आपने headphone नहीं रखा और आसपास का अगर noise है, सामने वाला क्या बोल रहा है वो आप नहीं सुन पा रहे हो और आप उनको बार-बार repeat करने के लिए बोल रहे हो, that will also give a bad impression. Now, this is all about virtual. Now we will quickly talk about if you have to go to the office and appear for the interview. So the first important point is your dress code. Okay, so you have to make sure you are formally dressed up. Fine. Next, you need to understand you have to keep all your documents handy with you in a folder. जो usually यहाँ पे आप avoid कर सकते हो. यहाँ पे if you wish, you can keep a folder on your desktop. If the person is asking you, you can share the screen and you can show your documents. But usually it is not required. आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो documents हैं वो वहां पे लाके सबमिट करने को ही बोलेंगे कंपनी में. ठीक है, बट वंस यू आर एंटरिंग इनटू द कंपनी तब आपको अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके चलना है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिज्यूमे की एटलीस्ट 2 कॉपी लेके जाओ. ठीक है, बिकॉज यू डू नॉट नो, हो सकता है वहां पे पैनलिस्ट 4 या 5 बैठे हैं, तो एक रेज्यूमे से वो चारों पांचों शेयर करेंगे क्या? इफ यू हैव 2 कॉपीज विद यू, यू कैन ऑफर अनदर कॉपी टू द अदर पर्सन, राइट? तो 2 कॉपी रेज्यूमे के आपको लेके जाना है. अगेन पेन एंड पेपर इज रिक्वायर्ड, यू शुड ऑलवेज सिट विद दैट. सेल फोन को साइलेंट मोड पे आपको अपने बैग के अंदर, इफ दे आर नॉट परमिटिंग यू, अगर वहां पे परमिशन नहीं है बैग अंदर लेके जाने की, आप सेल फोन को बैग में डाल के बाहर जो भी उनका सिक्योरिटी गार्ड होगा वहां पे आप उसको ड्रॉप करके जाएंगे. ठीक है, सो दीज आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स दैट आर देयर
for the interview. Now we will quickly move on to the next part of our discussion, that is how to write resume. Now this is something which is really important. कितने लोगों ने resume already बनाया है for the job? Fine. So some of you have already prepared it. कुछ लोग शायद अब बनाएंगे, whatever it is. Even if you are not going for any company, believe me, ये session सिर्फ उन students के लिए नहीं है जिनको directly अभी company के लिए जाना है. बाकी लोग सोचेंगे हम तो higher studies का सोच रहे हैं या फिर हम लोग let's say किसी competitive exams के हम लोग planning कर रहे हैं, or we are thinking about something else apart from these options. Even in that case also, you should prepare your resume. You should prepare for interview, because somehow that is improving your communication skills, and that is really important, whatever field you are choosing after your graduation. Okay? So before knowing how to prepare your resume, we should understand why do we need a resume, कि हमें resume की जरूरत क्यों है. So anybody who will tell me कि resume की जरूरत क्यों है, क्या need है resume की? मैम कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में उनको बता सकते हैं रिज्यूम के जरिए. Okay, very good. It's shortlisted. वो देख के एकदम अट्रैक्टिव रिज्यूम होना चाहिए ताकि उन्हें हमसे ज्यादा हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना पूछ सके. ओके, आपसे आपकी ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन ना पूछे वो. फाइन. लिमिटेड थिंग्स होनी चाहिए उसमें मैम, और एबिलिटी ये होनी चाहिए कि हम क्या इनोवेशन कर सकते हैं या हम क्या आउटपुट उन्हें दे सकते हैं. ओके, ठीक है. इफ टाइम विल परमिट हम लोग आखिरी में डिस्कस करेंगे कि रेज्यूमे में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए. But right now I will only talk about the important points that you have to cover in your resume. Detail इसका भी कुछ 1.5 hour लगता है resume building पर. But today the session was purely on interview techniques, so I will be focusing on that. But why I have introduced resume? Because most of the questions जो आपको interview में पूछे जाएंगे वो आपके resume से ही पूछे जाएंगे. Okay, so the very first point is why do you need resume is to get an interview, not a job. ये आपको आपके माइंड में क्लियर रखना है कि रेज्यूमे अच्छा लिखने से आपको जॉब नहीं मिलेगी. ठीक है, 100% श्योर नहीं है कि आपने अच्छा रेज्यूमे लिखा और आपको जॉब मिल गई. दैट विल गेट यू अ इंटरव्यू. मतलब आपका इंटरव्यू अच्छा होगा बिकॉज आपने अपना जितना भी इंफॉर्मेशन है वो रेलिवेंट वहां पे प्रोवाइड किया है. ओके, बट दैट डजंट मीन कि आपने अच्छा रेज्यूमे लिखा और सीधा आपको ऑफर लेटर मिल गया. नो, दैट इज जस्ट वन स्किल दैट यू हैव टू टेस्ट टू द इंटरव्यूअर्स. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इट आल्सो इंटरेस्ट द एम्प्लॉयर इन योर एबिलिटीज. कहीं ना कहीं हम रेज्यूमे में हमारी क्या कैपेबिलिटीज हैं, हमारी क्या एबिलिटीज हैं, हमने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या किया है, उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हमने कितना पार्टिसिपेट किया है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमने कौन से इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं या पार्टिसिपेट किए, ये पूरा एक लिस्ट आप अपने एम्प्लॉयर को रिज्यूमे के थ्रू पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं. एंड दिस इज गोइंग टू गिव अ पॉजिटिव इंप्रेशन फॉर एटलीस्ट 10 to 20 seconds टू योर इंटरव्यू. ठीक है, तो अगर आपने अच्छा रिज्यूमे डिजाइन किया है, प्रॉपर्ली आपने सारा कंटेंट इसमें मेंशन किया है, बिलीव मी आपका इंटरव्यूअर उसको देख के खुश होने वाला है. और एज यू ऑल नो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. सो बहुत बार चीजें वहीं से पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है. बट यू ऑल्सो नीड टू रिमेम्बर कि अगर आपने लास्ट मोमेंट पे अपना रिज्यूमे बनाया इधर उधर से अपने फ्रेंड से कॉपी पेस्ट करके, जिसमें आधी चीजें आपको पता ही नहीं है आपने क्या डाली है, देन दिस इज फॉर श्योर, आप ये मेरे वर्ड्स मार्क कर लीजिए, दिस इज फॉर श्योर कि आपका वो इंटरव्यू निकलने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाएंगे. बिकॉज मोस्ट ऑफ द डेटा आपने एक तो खुद से लिखा नहीं है, दूसरा कॉपी पेस्ट आपने इतना जल्दी में किया है कि चांसेस आर मच मोर हायर टू गेट देम रॉन्ग. ठीक है, सो लेट मी जस्ट शेयर अ स्मॉल एग्जाम्पल विद यू, अ शॉर्ट example. There was a student, like I have started my career in Mumbai with one of the construction company where we used to hire civil engineers, and like we used to go to IIT always,
IIT Powai to hire the engineers. So like वहां पे हमने विजिट किया and we got a resume. वो resume में एक बंदे ने अपना परसेंटेज लिखा था, ओके, एंड ही रोट हिज परसेंटेज एज 72%. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, जितना भी चीजें, जो भी चीजें आपने रिज्यूमे में लिखा है, ठीक है, वो सिर्फ वहीं तक है, ये सोच के बिल्कुल मत बैठो, वो क्रॉस चेक होता है, ठीक है. तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज द नेक्स्ट प्रोसेस दैट हैपेंस आफ्टर योर इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है. तो लेट्स से अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई एक पर्टिकुलर परसेंटेज लिखे हैं, तो वो आपके जो भी डॉक्यूमेंट होगा उससे क्रॉस वेरीफाई होगा. तो वो पर्सन के साथ वही हुआ, उसने 72% लिख के रखा था एंड उसके एक्चुअल परसेंटेज जो थे दैट वाज 82%. फाइन. सो वी हायर्ड दैट पर्सन, ऑफर लेटर उसको दे दिया. देन द नेक्स्ट प्रोसेस हैपेंड, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया अनदर टीम से. तो अब आपको क्या लगता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा, उसने लिखा था 72% बट उसको मिला 82%, तो हमारी कंपनी ने उसको रिजेक्ट किया होगा, हम लोगों ने उसको रिजेक्ट किया होगा या सिलेक्ट किया होगा? व्हाट डू यू फील? सिलेक्ट किया होगा. सिलेक्ट किया होगा. क्यों? सॉरी पल्लवी. किया होगा मैम, रिजेक्ट किया होगा. रिजेक्ट किया होगा. ओके मैम सिलेक्ट किया होगा क्योंकि उसके परसेंटेज ज्यादा थे ना. रिजेक्ट किया होगा. रिजेक्ट किया होगा. कुछ लोग बोल रहे हैं रिजेक्ट. अच्छा, कितने लोगों को लगता है रिजेक्ट किया होगा? एक साथ हाथ खड़ा करेंगे, रेज योर हैंड्स. हाउ मेनी ऑफ यू फील रिजेक्ट किया होगा? फाइन. तो जैसे आपने बोला रिजेक्ट किया होगा, so I think you all have taken the position of HR and you have understood one thing, ठीक है, कि ये केस में हमको उसको रिजेक्ट करना चाहिए. Now can anybody tell me the reason for this? रिजेक्ट क्यों किया होगा उसको? क्यों रिजेक्ट किया होगा? Sorry? He was lying. He was lying. उसने intentionally झूठ बोला क्या? जानबूझ के झूठ बोला उसने? सकता some terms and conditions. Can we say कि उसने झूठ बोला? He was lying. This is not the right term here, isn't it? उसने झूठ नहीं बोला. झूठ कब बोलता है? जब उसको 82%, 72 होते हैं और वो 82 लिखता हुआ, तब शायद चांसेस होते हैं कि वो झूठ बोल रहा है. यहाँ उल्टा है ना, उसके परसेंटेज थे 82 बट वहां पे उसने 72 लिखा. यस, तो क्यों रिजेक्ट करेंगे? Because he prepared his resume on time. He's lying. Lying तो नहीं होगा निखिल, I've already told you. मैम उसका इम्प्रेशन पढ़ाऊंगा, इम्प्रेशन गलत पढ़ाऊंगा क्योंकि उसको 82% और उसने 72 लिखे थे, तो जजेस को लगा होगा कि इसने खुद का ही रिज्यूम पढ़ा नहीं है. रिज्यूम पढ़ता तो इसमें लिखता. Okay. He was not aware of what's in his resume. It will affect on company profit. Okay, how it will affect on company profit? Still, he has not joined the company. उसने अभी company तो join ही नहीं की है. Profit loss का बात कैसे आता है? Yes, please. उसने resume में ही अपने गलत परसेंटेज बताए थे, तो इन केस अगर वो कंपनी ज्वाइन करता तो वो डे टू डे एक्टिविटीज में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता वो गलत अमाउंट बताता. अच्छा, सो इज इट रियली नेसेसरी कि वो जिस बंदा मतलब जिस प्रोफाइल पे जा रहा है वहां पे उसको प्रॉफिट और लॉस बताना ही है? दिस इज अ सेपरेट सेक्टर, राइट, फाइनेंस. यहाँ पे कॉमन आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? देयर इज वन टर्म दैट यू कैन कंक्लूड. कैन आई से इट इज केयरलेसनेस? हिज केयरलेसनेस व्हिच इज बीइंग शोन. एटीट्यूड दिखाता है ना बेटा ये आपका. जब भी कोई इंफॉर्मेशन आप रेज्यूमे में डालते हो और अगर वो अप टू द मार्क नहीं है, इट शोज व्हाट, कि आप केयरफुल नहीं हो, आपकी केयरलेसनेस है ये, राइट? तो उसकी केयरलेसनेस की वजह से उसको रिजेक्ट किया गया, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रॉफिट और एनी अदर वर्क दैट ही विल बी हैंडलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज ऑल अबाउट कि हो सकता है वो कंपनी ज्वाइन करने के बाद भी जो टास्क उसको दिया जाए वो उतना ध्यान से ना करे, लास्ट मोमेंट पे करें.
इतनी बड़ी मिस्टेक कब होती है? जब हम चीजों को कॉपी पेस्ट करते हैं और लास्ट मोमेंट पे करते हैं, ठीक है, तब हम उसको क्या नहीं कर पाते, वी आर नॉट एबल टू क्रॉस वेरीफाई व्हाट वी हैव रिटन। ओके, सो जितने लोगों ने भी रेज्यूमे नहीं बनाया होगा, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट फ्रॉम माय एंड कि आज जाके आप लोग रेज्यूमे बना लेना, बिकॉज ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो यूजुअली हम लोग कर देते हैं और उस टाइम हमको रियलाइज नहीं होता है, हमको बाद में रियलाइज होता है। Okay? And that time it is too late. Now the important part of your resume is the objective. I hope जिन्होंने बनाया है या जिन्होंने नहीं भी बनाया, they are well aware of the format कि हमें कैसा बनाना चाहिए. So objective लिखना एक बहुत important part है. Okay, it can be career objective or your general objective about who you are and what exactly you want from yourself. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ऑब्जेक्टिव आपका बहुत जनरल होना चाहिए, एकदम स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए कि मुझे मार्केटिंग में ही अपना जॉब करना है या फाइनेंस सेक्टर में ही करना है, या लेट्स से मुझे फार्मास्यूटिकल्स में ही इंटरेस्ट है, आई डोंट वांट टू वर्क फॉर ऑटोमोबाइल्स और आई डोंट वांट टू वर्क फॉर हॉस्पिटैलिटी. ठीक है, तो ये जो नेगेटिव कमेंट्स है वो आपके वहां पे नहीं होने चाहिए. You should always write a positive objective in your resume, right? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रिज्यूमे का. अदर देन दिस, आपकी जितनी भी की लर्निंग्स है वो आपको प्रॉपर्ली मेंशन करना है. Now we will quickly talk about the personal interview, that is also known as personal interaction also with the other person. The personal interaction में, this is the first important point that you all should know कि it is basically with the panel of experts from industries or from the college. So let's say आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप किसी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में जा रहे हो, वहां पे आपको अगर पर्सनल इंटरव्यू फेस करना है, so it can be a combination of experts from industry as well as the subject experts. ठीक है, तो वो पैनल में कोई भी हो सकता है. Accordingly you have to prepare yourself. And if you're going for companies, obviously there will be industry experts to whom you have to face. Now, what you have to cover in your personal interview? First of all, general awareness. ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है कि हम लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूक्रेन में जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में आपका क्या टेक है, आपने कितना पढ़ा है, व्हाट डू यू नो अबाउट इट, ओके, और अबाउट द इलेक्शंस व्हिच आर हैपनिंग और द रिजल्ट्स व्हिच आर गोइंग टू कम, ठीक है, उस पे आपका क्या टेक है. तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है या मैं न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं हूँ. इफ यू आर सेइंग सच थिंग्स, you will be directly rejected. Okay, so you have to keep reading newspapers, you have to be aware about what is happening around. ये चीजें बहुत important है personal interview. Okay, and it is not a one day activity, believe me. ऐसा नहीं है एक दिन सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ा और सभी कुछ आ गया और वही चीजें हमसे पूछने वाले हैं. Okay, newses can be covered from last 2 months 3 months की जो भी important newses है वो आपके डिस्कशन में आ सकती है इंटरव्यू के टाइम पे. Now next is extra curricular activity, क्योंकि academics तो आपका सबका कॉमन ही रहने वाला है, right? So there is nothing much to discuss on academics कि आपके इतने ही परसेंटेज क्यों आए, ये प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आते. Now other than that, we can ask you what are the extracurricular activities that you have participated, and most importantly, what are the other skills that you are possessing other than your academics. ठीक है, so let's say you are saying that I am a group leader, I have organized an event where I was leading that event, so they will try to check out whether you are a true leader, how you have taken the initiative, how you have worked in a team, how you have like make others work for your event or your like how you have organized it, how you have distributed the task to the other person. ये सारी qualities वो आप check कर सकते हैं. Okay, so extracurricular activities, they are really really important. तो भले 2 या 3 ही लिखो, but उनको आंसर करने के टाइम पे बहुत कॉन्फिडेंट रहना है आपको. Now next is you have to talk about your academics confidently. So let's say अगर आपके परसेंटेज ड्रॉप हुए हैं या आपके परसेंटेज इंक्रीज हुए हैं या आप एक सेम लेवल पे हो, लाइक आपने 3 out 70% स्कोर किया है, या आपका लेट्स से 10th 11th में 70-80% था और ग्रेजुएशन में एकदम से ड्रॉप हुआ है. सो यू कैन नॉट
say कि हमारा COVID batch है and all sort of, you know, answers. You should have a valid answer related to it. Fine. So academics में अगर कुछ up and down है, so the answer should be ready with you. Then specific field of interest, अगर आपने लिखा है कि आपने किसी NGO के लिए work किया है, या let's say आपका dancing में interest है, या आपका कोई ऐसी event में interest है जो कि शायद उस इंटरव्यूअर के लिए नया है, अंडरस्टैंड करने के लिए आपके स्किल सेट्स, तो उस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस विद दीस पॉइंट्स बिकॉज दैट इज स्पेसिफिकली फॉर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, वो उनके इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, वो आपके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इसके बारे में. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. ऑफ कोर्स जितना भी आपने लिखा है रिज्यूमे में उसको प्रॉपर्ली आपको कन्वे करते आना चाहिए. So you can keep updating yourself, you can keep revising it. The best part is keep reading the resume at least for 5 times after preparing it. Okay, तो आज जाके सब ये करेंगे, सबसे पहले रिज्यूमे प्रिपेयर करेंगे, उसका एक टारगेट लेके चलो फॉर नेक्स्ट 2 days we will be preparing our resume, और 2 दिन में हमारा रिज्यूमे रेडी हो जाना चाहिए. आफ्टर दैट at least read it for 5 times. 5 बार आप पढ़ो, automatically you will find your own mistakes. ठीक है, आपको किसी और को बतानी नहीं पड़ेगी बिकॉज आपने खुद के बारे में ही लिखा है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पॉइंट पे मैं शायद नहीं बोल पाऊंगी, सो लेट्स रिमूव इट. ओके, बिकॉज यू हैव टू आंसर दैट. नाउ नेक्स्ट इज इट आल्सो शोज योर ओवरऑल पर्सनालिटी. तो जो भी आप डिलीवर करते हैं, जो भी आप अपना मैसेज पास ऑन करते हैं, वो आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को डिफाइन करता है. नाउ नेक्स्ट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज रिपोर्टिंग फॉर ऑनलाइन personal interview. Offline के लिए automatically you all are aware of it, we can discuss afterwards, but then for online you need to keep these points in mind. You should always have the soft copies of your documents as specified or intimated for the personal interview. उसका एक folder बना के रख लो, so that अगर interviewer आपको screen share करके show करने के लिए बोल रहा है तो आप उसको तुरंत कर पाए. ठीक है, ऑफलाइन के लिए I've already told you, अगर आप ऑफिस में विजिट करके दे रहे हैं या कॉलेज में विजिट करके आप पर्सनल इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपके पास एक ऑलरेडी फाइल रेडी होना चाहिए. उसका मार्कशीट्स की सारी जेरोक्स सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, रिज्यूमे की 2 कॉपीज होनी चाहिए, ऑल दी सर्टिफिकेट्स जो आपने लिखे हैं, द इवेंट्स दैट यू हैव ऑर्गेनाइज्ड और यू हैव पार्टिसिपेटेड, उसके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए. अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है, ठीक है, तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए. Now, these are certain rules, these are certain skill sets which are actually required for your communication skills. So here you need to understand that these are the 3 things which are really important. Your knowledge, your personality and your communication skills. ठीक है, अगर ये 3 चीजों पे आपने वर्क करना शुरू कर दिया, आई एम प्रीटी श्योर ऐसी कोई भी कंपनी नहीं होगी जो आपको रिजेक्ट करेगी. ठीक है, so other than these 3 things, there are certain more skills that the interviewer can check. First is listening skills. ठीक है, तो जितने भी questions पूछे जाएंगे, मैंने आपको शुरू में ही बोला था, if you are sitting with your headphone virtually, या फिर आप जब offline बैठे हैं, सामने बैठे हैं interviewer के, that time always keep a paper pen handy with you, okay? So that आपको बार-बार questions repeat करने के लिए ना बोलना पड़े. So your listening skills are equally important as your oral skills are. You should always show respect towards the other person. It doesn't mean doing a handshake or, you know, greeting the person. That is one part of it. But then be on time. When you are on time, that is also showing respect to the other person. Okay, you have to be confident. Confidence अपने आप आ जाएगा. अगर knowledge है आपके पास, आपका communication अच्छा है, you know how to deliver it, automatically you will feel that yes, I am confident. अब अगर आपको किसी चीज को लेके नॉलेज ही नहीं है, लेट्स से आपको कोई सब्जेक्ट के बारे में पूछा, उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, अगर आपने पहले से ही सोच के रखा है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये है, एंड यू आर रेडी एंड दैट इज रियली योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपको पता है इन एंड आउट इसके बारे में, तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट रहेंगे. बट अपने टाइम पे कोई एक सब्जेक्ट को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना के और उस पर अगर आप बात शुरू कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज देयर विल बी क्वेश्चंस जो आप आंसर नहीं कर पाओगे. So these are few things that you have to keep in your mind. Of course, you have to show empathy. You have to be very polite to the person.
ओके इवन कई बार ये भी हो सकता है कि स्ट्रेस्ड इंटरव्यू हो, आपको बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ रहा है ऑफिस में जाने के बाद, या फिर ये भी हो सकता है टेक्निकल इशू जैसे आपके एंड से होता है वैसे सामने वाले के एंड से भी हो सकता है। ओके सो डोंट अज्यूम कि अगर आपका इंटरव्यू 9 बजे शेड्यूल किया गया है तो 9 बजे ही शुरू होगा, हो सकता है ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वो लोग आपको 10 साढ़े 10 बजे कनेक्ट करें, मतलब यू आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट 1.5 hour। ओके सो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, हैव सम पेशेंस। ओके you have to show friendliness। अब friendliness doesn't mean कि आप उनको बहुत friendly होके बात करेंगे, but then yes equally you need to understand कि आप बहुत एकदम बहुत formal नहीं हो रहे हैं उनके साथ। Fine. At times even I have already told you brevity is all about being on time, so make sure you are not on time, you are in time। ठीक है, तो अगर आपका इंटरव्यू ऑफिस में 9 बजे शुरू होने वाला है तो आप 9 को 10 कम पे पहुंच जाइए। ठीक है, सेम गोज विद योर ऑनलाइन ऑल्सो। ठीक है, ऑनलाइन में अगर आपको 9 o'clock का टाइम दिया है तो 10 minutes बिफोर आप ज्वाइन करें। Now the last point, which is really important, that is your non-verbal communication। So your eye contact, your facial expression, it all matters a lot। ठीक है, कई बार आप नर्वस हो ये आप बोल के नहीं बताओगे। ठीक है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन ही शो करेंगे कि अब आप नर्वस हो, आप नहीं आंसर कर पा रहे हैं, या आप आंसर तो कर रहे हो बट ऑल द टाइम यू आर लुकिंग downwards and you are answering it, you are not looking at the screen, तो वो भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन काउंट होगा और उसमें भी कहीं ना कहीं आपके पॉइंट्स डिडक्ट होंगे। राइट, सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अगेन द वे you have like put across yourself, I've already told the girls you have to sit with your स्टाइल, मतलब हर बार आपके हाथ बालों में नहीं जाने चाहिए। ठीक है, या आप बैठ के वहां पे अपना मेकअप ठीक नहीं कर रहे हो, ये सब पॉइंट्स आपको अवॉइड करने हैं। बॉयज पहले से ही क्लीन शेव होके बैठना है आपको, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सब प्रोफेशनल एटिकेट्स है जो कि वो आपके लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, so these are the points that you have to understand। Now quickly I will take you through some do's and don'ts of your personal interview। इसके बाद हम लोग जो important क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, आई एम प्रीटी श्योर ये मैक्सिमम लोगों को ऑलरेडी पता है व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ योर रिज्यूमे। तो सबसे लाइक इंटरव्यू की सबसे पहला जो डू है, चेक योर इंटरनेट कनेक्शन एंड कैमरा सेटिंग। ये आपको एक दिन पहले ही करके रखना है, टाइम पे एकदम बैठ के अपना लैपटॉप का या अपना वेबकैम जो आपने परचेज किया है उसको टाइम पे बैठ के एकदम उन्हीं के सामने ट्रायल एंड एरर नहीं करना है। Monday prior you can do it either with your family members or you can do it with your friends, whatever, like with whomever you are comfortable with। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो आपको चेक करना है। इंटरनेट कनेक्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक ऑल्टरनेट इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना ही चाहिए अदर देन द वाईफाई कनेक्शन व्हिच इज देयर एट योर होम। Now these are certain do's that you all have to follow। The first do is dress appropriately as per the interview। अगर उन्होंने आपको कॉलेज यूनिफॉर्म में आने के लिए बोला है, if you are going for company and they have asked you to come in the college uniform, make sure that it is properly ironed one day prior and you are following these certain rules। If you are going for any campuses, like if you are going for colleges, college interview, so आपका formally dressed होना चाहिए। You should know the exact time। ये नहीं होना चाहिए कि I was under the impression कि 10 बजे शुरू होगा, नहीं, हमको अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं सोचना है। कम से कम 4 से 5 बार आप क्रॉस चेक कर लो कि आपका टाइम क्या दिया है इंटरव्यू का। Arrive at least 10 minutes prior, as I've already told you, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो 10 मिनट पहले पहुंच जाओ। Maintain good eye contact during the interview। So maybe कुछ questions हो सकते हैं जो आपको नहीं आए, there is no problem in that। किसी को भी सब कुछ आता है ऐसा जरूरी नहीं है, but then you should be confident। okay, नहीं आता है simply say sorry sir I do not know, or sorry ma'am I do not। okay, maintain a proper eye contact। इधर उधर की फालतू बात नहीं करनी है इंटरव्यू में। sit still on your chair, avoid fidgeting and slouching। ठीक है, अगर नर्वस हो रहे हो तो पैर हिलाना हाथ हिलाना बंद करो। ठीक है, ये प्रैक्टिस पहले से ही शुरू करो। Ask for clarification if you don't understand a question। ऐसा नहीं कि आधा क्वेश्चन सुन के अज्यूम कर लिया, हाँ मुझे तो पता ही था, ये तो श्वेता मैम ने बताया ही था हमको इंटरव्यू टिप्स में कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है।
बट हो सकता है शायद उनके क्वेश्चन में उन्होंने कुछ ट्विस्ट किया हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा क्वेश्चन सुना और आंसर शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज वी वर नोइंग दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कम, और आधे क्वेश्चन में ही हमने आंसर्स अपने शुरू कर दिए। फॉर दिस आई विल शेयर अ स्मॉल एग्जांपल विद यू। एक स्टूडेंट थी मेरी, शी वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, लाइक वी यूज्ड टू प्रैक्टिस। अभी भी हम लोग जो स्टूडेंट्स पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के राउंड्स के लिए जाते हैं तो वी डू मॉक विद देम। So we did a mock and like usually जो पहला क्वेश्चन होता है tell me about yourself या फिर introduction, introduce yourself, ठीक है, ये जनरली एक पहला क्वेश्चन होता ही है, ये सबको पता है। आपको अगर मेरी सेशन नहीं भी लेती तो भी आपको पता था कि ये क्वेश्चन आने ही वाला है, ठीक है। सो दैट पर्सन वाज आल्सो नोइंग कि पहला क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है। सो शी वाज वेल प्रिपेयर्ड कि हाँ मुझसे पहला इंट्रोडक्शन पूछने ही वाले हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरव्यूअर ने क्या किया, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही बंदे ने बोला, इंटरव्यूअर ने बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसने आगे का क्वेश्चन सुना ही नहीं, उसने अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया। बट वो पर्सन ये पूछना चाहता था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ व्हिच इज नॉट रिटन इन योर रिज्यूमे, मतलब वो पर्सन ने पीछे का पार्ट बोला ही नहीं, उसके पहले वो लड़की ने क्या किया, उसको पता था कि इंट्रोडक्शन बोलना है तो उसने अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया। यूजुअली ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बिकॉज वी आर टू नर्वस, वी आर सो नर्वस कि हम बहुत बार सुनना ही भूल जाते हैं और हम अपने ही एक प्रेडिक्शंस में रहते हैं कि नहीं अभी ये पूछने ही वाले, तो इसका तो आंसर मेरे पास रेडी है ना, एंड यू आर ऑन दी क्लाउड 9 कि हाँ ये तो मैंने आंसर बहुत अच्छे से दिया, ठीक है। बट यहीं पे हम लोग मिस्टेक करते हैं। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि कई बार ये भी पूछा जा सकता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ व्हिच इज नॉट रिटन इन योर रिज्यूमे, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग। बी थरो इन योर रिस्पॉन्सेस, तो जो भी आंसर्स दे रहे हो एकदम थरो होना चाहिए, कहीं पे भी अटक रहे हो जस्ट से सॉरी टू देम, ओके, नहीं पता है जस्ट से सॉरी। बी कंसाइज विद योर वर्ड्स, एकदम लिमिटेड वर्ड्स में आपको अपना मैसेज कन्वे करना है। एज आई हैव टोल्ड यू 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं मिलने वाला है आपको आपके इंटरव्यू के लिए। ऐसा नहीं कि वो घंटों आपको बिठा के आपके बारे में पूछने वाले हैं, ठीक है। तो आप जितना शॉर्ट बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। उसके 2-3 फायदे हैं। सबसे पहला कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम करोगे अगर आप कम वर्ड्स में अपने बारे में बताओगे, ठीक है। दूसरा, आप नर्वस कम होगे बिकॉज आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है कम वर्ड्स के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करना या अपने बारे में बताना या जो भी रेज्यूमे में लिखा है उसके बारे में बताना, ठीक है। सो आप कंफ्यूज भी कम होगे, नर्वस कम होगे, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम करोगे, वोकैबुलरी प्रॉपर यूज कर पाओगे, ओके। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं टू स्पीक लेस, okay, so you have to concise your words, you have to limit your words, be honest to yourself। आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है जो आपने किसी और से सुनी हो और आप यहाँ पे बोल रहे हो। इट शुड बी अबाउट यू ओनली, यू शुड बी ऑनेस्ट विद दैट, ठीक है। तो अगर लेट्स से आपका कोई पेपर बैक हुआ है एंड इफ दे आर ट्राइंग टू आस्क यू, जस्ट बी ऑनेस्ट, ओके। उसके पीछे फालतू रीजंस मत बताते बैठो। whatever your personal problems were, उनको sideline कर दो। हाँ, कम आया, that means somewhere it was your mistake and try to accept it. Exhibit a positive attitude, okay? Depart gracefully. So ये again कुछ important points है। Now do's से ज्यादा important होते हैं don'ts, कि क्या नहीं करना है, क्या करना है ये तो सभी को ही बताते हैं। I will also discuss कि क्या नहीं करना है। So सबसे पहला, don't go in unprepared, मतलब बिना प्रिपरेशन जाने का सोचो भी मत। अगर आप सोचेंगे, मतलब सोचेंगे इन द सेंस बिना प्रिपरेशन अगर आप जाएंगे तो सिलेक्शन के चांसेस तो नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। So the first don't is don't make excuses. As I've told you कि अगर आपको लेट्स से एक पेपर में बैक आया है और बाई चांस वो हमने डिस्कस करते करते बोल दिया तो उसके लिए एक्सक्यूजेस नहीं मिलना चाहिए, okay? Don't make negative comments. So ये भी आपको मेक श्योर करना है कि आप नेगेटिव कमेंट्स नहीं बोलो वहां पे, ठीक है। डोंट फॉल्सिफाई एप्लीकेशन मटेरियल और आंसर्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक एग्जांपल भी मैंने इस पे आपको दिया है कि अगर गलती से आपने कुछ लिखा है, ठीक है, सो वो गलती को एक्सेप्ट करो एंड देन ट्राई टू मेक श्योर कि वो मिस्टेक्स आपके फ्यूचर में रिपीट ना हो। डोंट गो टू एक्सट्रीम्स विद योर पोस्चर, मतलब आप एकदम लीन होके नहीं बैठना है टेबल पे या ऑल द टाइम यू आर सिटिंग क्रॉस हैंड,
तो अगर आप क्रॉस हैंड्स बैठ रहे हो या क्रॉस लेग बैठ रहे हो, दैट शोज कि यू आर नॉट रेडी टू लिसन व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। ओके, सो ऑलवेज सिट इन अ प्रॉपर पोस्चर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डोंट अलाउ सेल फोन्स टू साउंड। ये हमने ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कस किया है। आपके सेल फोन म्यूट पे होना चाहिए, साइलेंट पे होना चाहिए व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द रूम, एंड इवन विद द वर्चुअल इंटरव्यूज आल्सो। डोंट लुक एट अ टेक्स्ट मैसेज। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी आ रहे हैं, जस्ट होल्ड ऑन फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। डोंट शो अ लैक ऑफ अटेंशन। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर पूछे जा रहा है, वो एनर्जी अपनी शो कर रहा है, बट सामने वाले को कोई मतलब ही नहीं है। हाँ ठीक है, आप पूछ लो हमसे, हमें तो हर क्वेश्चन में सॉरी बोलना है। ऐसा भी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, है ना, कि मुझे तो अल्टीमेटली बिजनेस ही करना है अपने पेरेंट का, उन्होंने जबरदस्ती भेज दिया है अभी कि जाके इंटरव्यू फेस करो, टाइम हियर। ठीक है, ऐसे सब एटीट्यूड आपको शो नहीं करना है। डोंट कॉन्ट्रडिक्ट योर ओन आंसर्स। अब लेट्स से कोई आंसर आपने दिया है, you have told कि मैंने ये पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। अब द मोमेंट द पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो इवेंट में क्या था, आपने किस तरीके से टीम्स फॉर्म की, हाउ यू हैव वर्कड, हाउ वाज द इवेंट, वेदर इट वेंट ऑफ वेल, या आपने कुछ प्रॉब्लम्स फेस की, अगर इस टाइप के क्वेश्चन सामने वाला पूछ रहा है, सो दैट पर्सन इज एक्सपेक्टिंग द आंसर्स। अब वहां पे ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने लिखने के लिए या बोलने के लिए तो बोल दिया कि मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, बट एक्चुअली मैंने नहीं किया था, मेरे फ्रेंड ने किया था, तो उसके रेज्यूमे में मुझे अच्छा लगा वो, तो वो मैंने अपने उसमें भी डाल दिया। ऐसा नहीं करना। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर विद दीज पॉइंट्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यू ऑल आर देयर विद मी? या मैम। Okay. Thank you for the response. Now, quickly, we will move on to the important part of our discussion, that is the frequently asked questions. Okay, ये कई बार हमारे दिमाग में क्वेरीज रहती है, क्वेश्चंस रहते हैं कि जब भी हम इंटरव्यू फेस करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। Okay, so today I will be discussing जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, ये किसी के माइंड में डाउट है क्या? I hope you all are aware कि ये क्वेश्चन तो आना ही है। Tell me about yourself or introduce yourself, right? तो जो चीज हमें पता है कि ये आनी ही है, तो हम प्रिपेयर करके जाते हैं या छोड़ के जाते हैं? What do you do? प्रिपेयर करके जाते हैं। Obviously, prepare करके जाते हैं। So how many of you have prepared your introduction so far? कितने लोगों ने प्रिपेयर किया है? या कंपनी का जब पता चलेगा या पता चलेगा कि कॉलेज में इंटरव्यू होने वाला है तब प्रिपेयर करेंगे मैम एक दिन पहले? अभी से क्या मतलब है, भूल जाएंगे हम तो अभी प्रिपेयर करेंगे। ऐसा लगता है किसी को अभी से प्रिपेयर करेंगे तो भूल जाएंगे? नो मैम, अपने बारे में सबको अपन जानती है हम क्या है, तो उसमें भूलना क्या है। अच्छा, तो प्रिपरेशन करने की भी जरूरत नहीं है? नहीं, करने की जरूरत है ना। हाँ, करने की जरूरत है, बट ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम भूल जाएंगे। वेरी वेल सेड। आपकी जैसे फैकल्टी ने भी इनिशियली बोला था कि कॉलेज में जो सब्जेक्ट्स होते हैं या कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो यूजुअली काफी स्टैंडर्ड पैटर्न पे होती है ना, जिसको हम मतलब मेहनत करके वी कैन डू इट, और हमें पता है कि ये क्वेश्चंस आने ही है। कहीं ना कहीं फैकल्टीज आल्सो हेल्प अस, बट देन व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू, हर एक कंपनी, हर एक पर्सन का अपना एक अंडरस्टैंडिंग होता है। ओके, सो यहाँ पे आपकी एक्चुअल स्किल सेट्स आइडेंटिफाई होती है और पता चलता है कि आप कितने प्रिपेयर्ड है, आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, आप कितने सिंसियर है, आप कितना आपको मतलब कितना रिक्वायर्ड है वो जॉब, ये सारी चीजें आपको वहां पे समझ आती हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है और लास्ट मिनट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, यू शुड प्रिपेयर इट एटलीस्ट 8-9 months बिफोर, सो दैट आपको एक प्रॉपर रिविजन का, प्रॉपर अपने बारे में एक अंडरस्टैंडिंग का और खुद के बारे में पोर्ट्रे करने का टाइम मिल जाए। Now, next important point is list down your strengths and weaknesses. I usually suggest my students to write strengths in their resume. ठीक है, आपके resume में आप अगर पहले से ही strengths लिख के रखोगे तो आपके लिए काफी easy हो जाएगा ये question को आंसर करना। ठीक है, तो टाइम पे आपको बैठ के सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे बारे में क्या अच्छाई है या मेरी क्या स्ट्रेंथ एरियाज है। ठीक है, हाँ, अब ये किसी के दिमाग में आ रहा है कि मैम वीकनेस भी लिख के रखनी चाहिए अपने रिज्यूमे में? How many of you feel कि weaknesses भी लिख के रख देनी चाहिए?
किसी को भी नहीं लगता है कि वीकनेस लिख के रखनी चाहिए, ऑब्वियसली यस मैम, लिख के हमें नहीं रखना चाहिए। बट अगर इंटरव्यूअर ने मुझे क्वेश्चन पूछा व्हाट आर योर वीकनेसेस, तो इसको मैं कैसे आंसर करूंगी? मुझे अपने बारे में वीकनेसेस बतानी चाहिए या मुझे ये बोलना चाहिए कि आई डू नॉट हैव एनी वीकनेसेस? लिखा नहीं है मतलब मेरे में कोई वीकनेस ही नहीं है सर, स्ट्रेंथ तो लिखी है मैंने। इज इट हाउ यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन? अगर वीकनेस पे क्वेश्चन पूछा तो कैसे आंसर करोगे? ओके, रेवती सिंह बतानी असं सांगायचं मॅम, आपली विकनेस की त्याच्याने निगेटिव्ह नाही पॉझिटिव्ह विचार केला पाहिजे त्यांनी. अच्छा, तो पॉजिटिव कैसे बताओगे रेवती? नेगेटिव वीकनेसेस कैसे पॉजिटिव हो सकती है आपकी? वीकनेस मतलब तो एक नेगेटिव पॉइंट ना आपका, isn't it? वीकनेस इज व्हाट? ऑपोजिट ऑफ योर स्ट्रेंथ। तो वो कैसे पॉजिटिव होगा? उसको अगर पॉजिटिवली बताओगे तो वो तो फिर आपका स्ट्रेंथ हो गया, वो वीकनेस कहाँ रहा? ओके, और कोई आंसर्स हैं? वीकनेस अगर पूछेंगे तो कैसे आंसर करोगे? ओके, निखिल इज सेइंग माय वीकनेस इज लिसनिंग स्किल्स। पूरा का पूरा इंटरव्यू बेटा लिसनिंग स्किल्स पे है। सामने वाला जो बोल रहा है वो सुन के आपको आंसर देना है। आपने ऐसा वीकनेस बोला जो कि सामने वाले को हजम ही नहीं हो रहा। यस प्लीज। मैम कोई क्वेश्चन नहीं आता है इंटरव्यू में तो क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए? उसके लिए तो सॉरी बोलना चाहिए, बट आपसे अगर आपकी वीकनेस पूछी है तो क्या उसके लिए आप सॉरी बोलोगे क्या? सॉरी सर मुझे नहीं पता मेरी वीकनेसेस। नो मैम। ठीक है, अगर कोई सब्जेक्ट रिलेटेड है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन है जो आपको नहीं पता है, उसके लिए आप सॉरी बोल सकते हो। बट अगर आपको आपकी वीकनेस पूछी है तो आपको आंसर देना ही पड़ेगा। मैम मान लो न्यूज़पेपर में से कुछ अगर पूछ लिया, जैसे आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो हाँ हाँ हमको है, पर अगर कुछ उसके बारे में अगर मैम किसी नेता के बारे में अगर पूछ लिया तो मैम हमको तो पता ही नहीं है, तो फिर हाँ, मैम तो तब उसके लिए आप सॉरी बोल सकते हो। अगर आपको कोई एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता है तो उसके लिए आप सॉरी बोल सकते हो। यहाँ हम बात कर रहे हैं वीकनेसेस की। अब ये क्वेश्चन को कैसे आपको हैंडल करना है, आई विल टेल यू दिस। वीकनेस आपको ऐसी बतानी है जिसपे आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। लेट्स से माय वीकनेस इज माय कम्युनिकेशन स्किल्स। आई एम अनेबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली टू माय फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब लेट्स से कम्युनिकेशन में भी if I'm very specific, I can say that I'm not very good in speaking English. I'm unable to speak fluent English. Okay, so let's say this is my weakness. So how I'm going to answer this? I can simply say that since I'm not that good in my fluency in English, but yes, I'm regularly speaking with my friends, with my family, with my colleagues to improve it. ओके, तो आपने क्या किया? आपने अपनी वीकनेस तो बताई, बट साथ में आपने ये भी बताया कि उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू फॉर टेलिंग मैम। Okay, so you have to speak your weakness along with this point that what exactly you are doing to overcome that weakness. Okay, you cannot say I do not have any weakness. मेरे में कोई weakness ही नहीं। ये तो आंसर बिल्कुल नहीं देना है, या फिर ये एटीट्यूड भी शो नहीं करना है कि मुझ में तो ये weakness है, आपको जो करना है कर लो। मतलब मेरा कम्युनिकेशन वीक है, I cannot work on it. Now you take a call of this. Okay, you cannot be like that. Now next is if you are choosing a particular specialization, like you are doing BCom or BBA, then they may ask you certain questions on that. या फिर आप में से बहुत सारे लोग MBA करने चाहेंगे तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको MBA कौन से फील्ड में करना है। So let's say if you are saying कि I wanted to pursue or I wanted to do my management in marketing or let's say in HR or finance or operations, so they may ask you this question, why this specific career you are choosing, right? So you should be ready with that. Now usually ये question जो question number 3 है उसके आंसर के लिए अभी जो करंट ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, वो इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है,
इस पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट इज इंटर्नशिप लर्निंग्स। अगर आपने इंटर्नशिप्स किए हैं या आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं तो उसकी लर्निंग्स क्या है, उसके डिटेल्स क्या है, वो लोग पूछ सकते हैं। ओके, सो बी थरो विद दैट। Now, very important question. What are your future goals? Usually ये question ऐसे भी पूछा जा सकता है कि where do you see yourself 5 years from now? तो ये future goals के answers आप कैसे करने वाले हो? How you are going to make or how you are going to satisfy the another person for this? क्या goals आप अपने बताने वाले? I wanted to have Mercedes. I wanted to have my own bungalow. These are the questions. These are the answers which you are going to give for future goals. Yes, ma'am. ये तो आपकी ड्रीम है. We have to talk about the reality. Don't you think so? Okay, तो achievable goals हमको बात करना. Obviously, you can have this one fine day. But then what about now? Okay, so future goals is all about the skills that you are possessing and how you are improving yourself. आ रहा है समझ में आपको? आपके स्किल्स अगर इम्प्रूव हुए, डोंट यू थिंक मर्सिडीज और बंगलो और ये सब चीजें अपने आप हो जाने वाली है? अगर आपकी स्किल्स इम्प्रूव हुई, अगर आपने अच्छी कंपनी में जॉब लिया, इफ योर पैकेज इज इंक्रीजिंग, इफ योर प्रोफाइल इज increasing, don't you think this will come on your way? But then right now you have to focus on your skills, on the companies, on the colleges that you are targeting. वो आपके लिए प्रायोरिटी है. आ रहा है समझ में आपको? तो फ्यूचर गोल्स जो है वो सारे के सारे प्रोफेशनल गोल्स होने चाहिए, ना कि पर्सनल. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मर्सिडीज होना, बंगलो होना, ये सब क्या है आपके? ये आपकी पर्सनल नीड्स है, पर्सनल गोल्स है. बट अभी आप किनके सामने बैठे हो? आप कंपनी के सामने बैठे हो. आप एक ऐसे कॉलेज में बैठे हो जहां पे आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है, तो वहां आपके फ्यूचर गोल्स ये होने चाहिए कि ये मेरे स्किल सेट्स है, मुझे यहाँ से अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करना है, या मेरे ये प्रोफाइल मुझे मिल रही है, मुझे ये प्रोफाइल से और आगे बढ़ना है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. Are you all getting my point? What I'm trying to say Yes, here? ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Fine. Next is favorite subject. ये again मैंने आपको प्रीवियस उसमें भी डिस्कस किया था कि फेवरेट सब्जेक्ट वहीं पे बैठ के नहीं बनाना है. कि अगर वैसा करोगे या मार्क्स देख के आपको ये लगता है कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, सो वो बहुत बड़ी मिस्टेक आप करने वाले हो. ठीक है, मार्क्स डिसाइड नहीं करते हैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट. फेवरेट सब्जेक्ट डिसाइड इस फैक्टर पे होता है कि आपका इंटरेस्ट किसमें. प्रोबेबली हो सकता है उसमें आपको उतना अच्छा मार्क्स नहीं मिला हो, बट उसमें आपका नॉलेज बहुत अच्छा है. दैट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट. तो मेक श्योर कि वो आप प्रॉपर्ली उसको आंसर करें. सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस, अब बहुत सारे आपको सिचुएशंस दिए जा सकते हैं कि लेट्स से आपके कॉलेज में एक इवेंट हो रहा है, वो इवेंट के आप कोऑर्डिनेटर हो, टाइम पे आपका माइक खराब हो गया है एंड function is on. Okay, so now how you will manage that? And you have a crowd of around more than 800-900 students and mic is not working. अब इस सिचुएशन में आप कैसे डील करोगे? एंड यू आर द इवेंट कोऑर्डिनेटर, आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, तो इस टाइप के काफी सारे सिचुएशंस को क्रिएट करके दे सकते हैं जस्ट टू चेक आपकी स्किल्स कैसी हैं और आप कैसे उस सिचुएशन में पुट फॉरवर्ड करते हो अपनी स्किल्स को. Current affairs, current issues, again I have already told you this. न्यूज़पेपर रीड करना शुरू करो अगर आप नहीं करते हैं तो, बिकॉज बहुत बार उस पर आपको ओपिनियन पूछा जा सकता है. ठीक है, यू कैन नॉट से कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो पढ़ती ही नहीं हूँ न्यूज़पेपर. ये टाइप के आंसर्स आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते. व्हाई शुड वी सिलेक्ट, व्हाई शुड वी हायर यू, इसका क्या आंसर दोगे? ओके, व्हाई शुड वी हायर यू, मैं आपको ही क्यों लूं, इसके लिए आप क्या आंसर दोगे, क्या प्रूफ करोगे खुद के बारे में? That I am the best candidate? No, ma'am. Then how you are going to convince? ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझोगे, मतलब अपना समझ के बताओगे सर मैम उनको. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अपना समझोगे? आपको तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है. यू आर मीटिंग दैट पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम.
मिलते रहते हो क्या इंटरव्यूअर से? मैम हम उनका प्रॉफिट रेज करने के लिए और पहले से ही प्रॉफिट की कहाँ बात आ गई बेटा? आप ऑलरेडी किसी और के लिए प्रॉफिट रेज करके दिया है आपने इसके पहले? ऐसे आंसर्स बिल्कुल मत दो जिसमें खुद ही फंस जाने वाले। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वी जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि उनको क्या स्किल सेट्स चाहिए। लेट्स से उनको ऐसा बंदा चाहिए कि he or she should be good in communication, he or she should be good with computer knowledge, they should be punctual, they should be confident. ये सब स्किल सेट्स ऑलरेडी लिखी होती है जॉब प्रोफाइल में, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप कॉलेज के भी इंटरव्यूज में जाते हैं तो प्रोफाइल ऑलरेडी दिया होता है कि उनको किस टाइप का कैंडिडेट चाहिए। सो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट प्रोफाइल एंड मेक श्योर जो भी उन्होंने लिखा है वहां पे यू आर जस्टिफाइंग दैट। You can simply say that, sir, you are looking for a candidate who is good in communication, who is good, who should be good in computer proficiency. And I possess those qualities. So I request you to give me a chance so that I can prove myself. Okay. So be polite, be humble, and try to put forward your point in such a way that they are forced to take you. Is this clear? आ रहा है समझ में सबको? Yes, ma'am. Yes. Okay, next question is, do you want to ask us anything? ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है कि अब आपको मुझसे कोई क्वेश्चन है क्या, ये इंटरव्यू पूछ सकता है, तो क्या पूछोगे? क्या क्वेश्चन पूछोगे? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो सिंपली क्या बोलोगे? All clear, sir. Thank you so much. Thank you for giving me the opportunity to introduce myself. Okay. अगर कोई क्वेश्चन है, लेट्स से आपको कंपनी की आपने ऑलरेडी प्रोफाइल पढ़ी है या कॉलेज के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है और आपको कुछ पॉइंट्स जो कि क्लियर नहीं है, ठीक है, दैट यू कैन आस्क। फाइन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक दिन पहले उनकी पूरी वेबसाइट अच्छे से पढ़ लेना है। इसीलिए मैंने बोला रिज्यूमे आज ही बना लो, पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी आज से ही शुरू कर दो, ताकि जब कंपनी या फिर किसी कॉलेज के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो एक दिन 2 दिन आपका जो टाइम मिल रहा है आपको, वो प्योरली किसमें डिवोट होना चाहिए, वो आपका उनकी वेबसाइट पढ़ने में डिवोट होना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप इसके लिए मतलब वर्क करने के लिए जा रहे हो, या आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो वो कॉलेज के बारे में मतलब क्या इन एंड आउट है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट interview techniques. I hope you all have learned a lot from it. Now, any questions, any doubts that you have? मैम ग्रुप डिस्कशन में वो लोग क्या क्या पूछ सकते हैं हमको, फ्रेशर्स को? बेटा ग्रुप डिस्कशन के लिए हम लोग सेपरेट एक सेशन करेंगे, क्योंकि उसका भी अराउंड 1-1.5 घंटे का टाइम जाता है ना एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ अगर आप किसी कंपनी के लिए जा रहे हो, सो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो मैं क्विकली आपके साथ डिस्कस करूंगी। दैट इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन टिप्स, ठीक है। सो हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, इसमें सबसे पहले आपको एप्टीट्यूड अपना प्रिपेयर करना है, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू की टेक्निक्स जो आज मैंने डिस्कस की है दैट इज द लास्ट स्टेप, ठीक है। तो वो लास्ट स्टेप तक पहुंचने के लिए पहले हमको क्या करना है, पहले हमको एप्टीट्यूड क्लियर करना है। तो एप्टीट्यूड के लिए आपको कम से कम 6 से 8 घंटे का अपना प्लानर बनाना है। आपको स्टार्ट करना है टॉपिक्स को प्रिपेयर करके और टॉपिक वाइज और सेक्शनल टेस्ट देना, ताकि आप अपने स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, कौन सी कंपनीज आने वाली है, कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, ये सब आपके माइंड में क्लियर रहे। एंड एट द सेम टाइम यू शुड आल्सो बी अवेयर ऑफ योर थ्रेट्स, ओके। इसके बाद आपको मॉक्स अपीयर करने हैं। फाइन। मॉक्स कैन बी रिलेटेड टू जो कंपनी में जा रहे हैं, वो कंपनी के पेपर्स हो सकते हैं प्रीवियस ईयर के, जैसे आप कैट एंट्रेंस दे रहे हो या फिर जैट दे रहे हो या MBA CET दे रहे हो या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके भी मॉक्स अवेलेबल है, तो वो आप मॉक्स दे सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एनालिसिस। यू हैव टू फाइंड आउट कि वो मॉक में कितना स्कोर आया, कहाँ आपको इम्प्रूव करना है, कैसे आपको आगे मूव फॉरवर्ड करना है, एंड देन आफ्टर दैट ऑनलाइन टेस्ट आपको देना है। बस सारी की सारी कंपनीज और सारे के सारे टेस्ट
मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट आपके ऑनलाइन ही होते हैं। तो अगर आप सिर्फ पेपर पेन पे प्रैक्टिस कर रहे हो और एग्जाम वाले दिन जाके अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा बेटा। ठीक है, तो ये चीजें हमको आज से ही करना है। क्विकली आई टॉक अबाउट विकल्प एजुकेशन, बिकॉज इतने टाइम से मैंने सिर्फ आपको इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में बताया। नाउ क्विकली आई टॉक अबाउट माय इंस्टीट्यूट आल्सो। इन विकल्प एजुकेशन वी ट्रेन स्टूडेंट्स for MBA entrance, that is CAT, ZAT, TISNAT, SNAP, जितने भी मैनेजमेंट एंट्रेंस होते हैं इंक्लूडिंग MBA CET। MBA CET की अभी तक डेट्स आई नहीं है, ठीक है। दोज हु आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर CAT 2022, उनकी भी पैकेज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्दी। तो अगर आपको मैनेजमेंट एंट्रेंस से रिलेटेड, यस बेटा। मैम ऑटोकैड है क्या आपके पास कोर्स? नहीं, ऑटोकैड का कोर्स नहीं है बेटा। उसके बारे में कुछ बताएंगे? ऑटोकैड के बारे में बेटा वो कैसा है, टेक्निकल कोर्स है, तो वो आपको टेक्निकल पर्सन जो होंगे उन्हीं से ही गाइडेंस लेना पड़ेगा। आर एक्सपर्टाइज इज इनटू एप्टीट्यूड, ठीक है। एप्टीट्यूड सॉफ्ट स्किल जो है उसमें हमारा एक्सपर्टाइज है। नाउ बेस्ट पार्ट अबाउट आवर इंस्टीट्यूट इज कि डायरेक्टर सर खुद ही सेशंस लेते हैं। सर को 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अगेन आई एम आल्सो ऑलवेज अवेलेबल इन द ऑफिस फॉर द स्टूडेंट्स। जब भी मेरे सेशंस होते हैं आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई एम इंडिविजुअली टॉकिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस इज द बेस्ट पार्ट। आपको कहीं पे भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, यू कैन directly connect with us and we can sort out your problems. These are few pictures of our offline classes जहाँ पे हम लोग other than क्लासरूम ट्रेनिंग जो कि एप्टीट्यूड के लिए रिक्वायर्ड है, उसके अलावा हम लोग न्यूज़पेपर डिस्कशन भी करते हैं। We do management games also. We play management games also in the classroom. Most importantly, we have experienced faculties other than Rishi sir and me. Okay, so once you'll come to the office, हम लोग और डिटेल में उसके बारे में बात कर पाएंगे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि हम बहुत तक कंफ्यूज होते हैं कि हम ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं, अब आगे क्या करना है। So that sort of idea, that sort of guidance also we are providing, and that to be free of cost. ठीक है, उसके कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। You can come down, we will guide you, and accordingly you can plan कि आपको कंपनीज के लिए जाना चाहिए या आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए या आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जाना चाहिए। That also we will guide you. We have our own application. There are few students sitting in this classroom who are our own students who have joined Vikalp Education. So they are well aware about our mobile application. So probably I will request them to help your friends with our mobile application. Although अगर बाकी लोगों को भी एक्सेस करना है तो आप एंड्रॉइड या फिर iOS जो भी फोन आप यूज करते हैं उस पे आप विकल्प एजुकेशन सर्च कर लीजिए। You will find our application. उसको आप डाउनलोड करेंगे। So there are very there are free content that we are providing to the students. We are expertise into CAT and MBA entrance preparation. So these are the facilities that we will be providing. कि आपको 100+ mocks मिलने वाले हैं, 350+ practice tests. So all these things will be given to you in our classroom program. So thank you so much, friends, for listening me patiently from last 1.5 hours. I hope the session was fruitful to you. You have got to learn a lot. And I'm looking forward कि आप लोग जो भी मैंने बताया है उसको implement करना शुरू करेंगे at the right time. हेलो मैम। यस कल्याणी, पूछिए बेटा। मैम इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगा क्या? बेटा इंटरव्यू यूजुअली इंग्लिश में ही हो, है ना। मिक्स हो सकता है बट देन मेक श्योर करिए कि आप इंग्लिश की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अगर सामने वाले ने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है तो क्या आप हिंदी में या अपनी मदर टंग में आप आंसर करोगे क्या उसको? ठीक है, तो इंग्लिश की प्रैक्टिस करना शुरू करो। ये अभी नहीं, आपको आगे भी हेल्प करेगा। Yes, ma'am. So start practicing in English. Okay. Hello, ma'am. Yes, Shrutika, please. मैम इंटरव्यू के टाइम गर्ल्स की हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए? बेटा मतलब आप हेयर स्टाइल कैसी भी रखो, बस इतना ही मेक श्योर करना है कि हेयर्स एक तो आपके फेस पे नहीं आ रहे हैं और आप बार बार हेयर्स पे अपना हाथ नहीं, मतलब you are not adjusting your hairs during the interview. Okay. अभी जैसे मैंने टाई की है पीछे, you can do that so that it is not coming on your face and you are not getting irritated during the interview. आप एकदम cool and calm and you are facing it confidently.
इंटरव्यू के लिए कॉलेज यूनिफॉर्म में ही आना है क्या? बेटा वो डिपेंड करेगा, ऑलरेडी वो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, तो अगर उन्होंने कंपलसरी कॉलेज यूनिफॉर्म बोला है तो यू कैन गो विद दैट, इफ नॉट फॉर्मली आपको ड्रेस अप होना है, मतलब गर्ल्स कैन वियर कुर्ती विद अ दुपट्टा, ओके, अगर आपको कॉलेज यूनिफॉर्म नहीं बोला है। ओके, रोशन इज सेइंग कि मैम मुझे एमसीए करना है, सो एमसीए के लिए भी बेटा हम लोग एमसीए सीईटी करवाते हैं, लाइक एमबीए सीईटी के जैसा ही होता है एमसीए सीईटी, बस उसमें ये है कि मैथ्स का वेटेज ज्यादा होता है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डायरेक्टर सर का जो स्पेशलाइजेशन है, ही इज अ क्वांट ट्रेनर, और सर पिछले 15 साल से कैट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो एमसीए सीईटी का एंट्रेंस भी हम लोग आपको करवाएंगे। मैम इंश्योरेंस का भी करते हैं क्या? इंश्योरेंस का नहीं बेटा, जितने भी एंट्रेंसेस होते हैं ना उसकी प्रिपरेशन हम लोग करते हैं। ओके, और कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लीज फील फ्री टू आस्क। यस, इंटरव्यू में रिज्यूमे लेके आना ही पड़ता है कल्याण, उसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है, वो लेके जाना ही है रिज्यूमे अपना। और बहुत बार तो कंपनीज या फिर कॉलेजेस आपको पहले ही बोलेंगे अपना रिज्यूमे शेयर करने के लिए, उसके बाद वो आपका इंटरव्यू प्लान करेंगे, ठीक है। तो रिज्यूमे आज ही प्रिपेयर कर लो, आई हैव टोल्ड यू, आप एक डेडलाइन बना लो खुद के लिए कि मुझे 2 दिन में 4 दिन में अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करना है, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस उस अकॉर्डिंग स्टार्ट कर पाए। हेलो मैम। यस श्रुतिका। हेलो हाँ बेटा बोलिए। मैम, सॉरी मैम, मीटिंग ज्वाइन करने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया। आप शॉर्टकट में इंफॉर्मेशन दे सकते हो क्या मैम? कौन सी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हो श्रुतिका? जो आप बता रहे हो वो। बेटा इसकी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, विकल्प एजुकेशन का हमारा चैनल है, ओके, तो आप ये पूरा सेशन वहां पे फिर से देख सकते हो यूट्यूब पे। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके हेलो मैम। हाँ रेशमी बोलिए। मैम, अगर हमको इंटरव्यूअर पूछता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो उसमें हमको क्या जवाब देना चाहिए उनको? बेटा क्योंकि आप फ्रेशर हो, आप फ्रेशर है ना रेशमी अभी? नहीं मैम, मेरा 6 मंथ एक्सपीरियंस है कोऑपरेटिव बैंक में। अच्छा, तो अगर आपको ऑलरेडी 6 मंथ एक्सपीरियंस है तो फिर वो आपको ये पूछेगा कि लास्ट सैलरी आपको कितना मिलता था, ओके, लास्ट सैलरी के अकॉर्डिंग फिर वो आपको एक्सपेक्टेशन पूछेगा, तो ऑब्वियसली जो लास्ट सैलरी आपको मिलती थी उससे कम तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। यस मैम। ठीक है, तो वो उसी लाइन पे रहेगा, और वो चीज ऑलरेडी इंटरव्यूअर को पता रहेगा बिकॉज आपने वो चीज रिज्यूमे में मेंशन किया है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, प्रणाली ने पूछा है मैम डॉक्यूमेंट्स हमें ओरिजिनल कैरी करना चाहिए क्या? हाँ बेटा, अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करना है। अगर आप ऑनलाइन वर्चुअल इंटरव्यू अगर दे रहे हैं, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, उस केस में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उसका एक फोल्डर बना के रखना अपने डेस्कटॉप पे। यस मैम, फ्रेशर्स को वो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या क्वेश्चन कर सकते हैं मैम? व्हाट्स योर नेम? आपने विधि कुछ मिश्रा। अलग? सॉरी, विधि मिश्रा। विधि मिश्रा, ओके विधि। बेटा ऑलरेडी हमने सेट ऑफ क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए ना, वो सारे फ्रेशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही किए हैं, मैंने कुछ 8-10 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, वो फ्रेशर्स के अकॉर्डिंग ही अपने डिस्कस किए। मैम हेलो। यस श्रुतिका। मैम, चैनल का नेम बताइए ना प्लीज। विकल्प एजुकेशन। विकल्प। हाँ, यूट्यूब पे जाके आप विकल्प एजुकेशन टाइप करिए, तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, कल्याणी इज आस्किंग कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, तो आपके सर्टिफिकेट सारे आपको कैरी करने हैं, इंटर्नशिप अगर आपने किया है तो वो, उसके अलावा आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, कोई इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया है, और वो अगर आपने अपने रिज्यूमे में डाला है तो वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कैरी करने साथ। तुषार इज आस्किंग एज अ फ्रेशर सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए? तो बेटा यहाँ पे प्योरली ये चीज डिपेंड करता है तुषार कि आपका प्रोफाइल क्या है, ठीक है। तो इनिशियली एज अ फ्रेशर आपको सैलरी पे फोकस ना करते हुए आपको प्रोफाइल पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। एक बार आप 6-8 महीने 1 साल आप काम करो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सैलरी ऑटोमेटिकली आपका जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होता चला जाएगा, बट इनिशियली आपको प्रोफाइल पे
फोकस करना है। ठीक है, तो आपको कोई नंबर उनको नहीं बताना है कि मुझे 10,000 ही चाहिए या 15 ही चाहिए या 20 से कम तो मैं काम करूंगा ही नहीं। इस टाइप के आंसर्स हमको नहीं देने हैं। Tisha is asking, ma'am, which type of documents we have to carry? I think I have already informed you this. Okay, पूछिए और क्या questions हैं? I think I have answered the one which are there in the chat box also. So जिनके आंसर्स मैंने दे दिए, प्लीज चैट बॉक्स में क्विकली यस या नो कर दो आप, आपका अगर आंसर क्वेश्चन अगर आंसर हो गया है तो। मैम यस बेटा। मैम इंटरव्यू में कौन से कपड़े पहन के जाना है? फॉर्मल में शर्ट्स? For boys, you have to wear formal shirts with trousers and proper belt. ठीक है? कलर मैम? Color light colors. Don't use bright colors. Light color shirts. It can be Okay. white, gray, or any decent color. मैम कॉलेज के ड्रेस भी पहन के जा सकते हैं ना? हाँ, अगर कॉलेज के थ्रू आप जा रहे हो और मेंशन है वहां पे कि कॉलेज यूनिफॉर्म में आना है तो यू कैन डू दैट, अदरवाइज वियर फॉर्मल्स। Okay, I think, ma'am, you have addressed majority of their questions, I guess. So, thank you so much, ma'am, for such a wonderful session. And I'm sure your talk will immensely benefit all the participants who have joined. And now to propose a vote of thanks, I would like to call upon Mr. Gaurav Gajbe. Over to you, Gaurav, sir. Thank you so much, ma'am, and the college for giving me this opportunity to share my inputs to the students. Thank you so much, ma'am, for this wonderful session. Ma'am started with the basic concept of interview. Ma'am told us the basics which is required within an interview. So students, when you are going for an interview, don't forget to take a pen and diary with you, which is the basic instruction by the madam. Another important points which ma'am discussed is took 2 copies of resume, use headphones while you giving interview in online mode. Students, in every interview, 2 questions are common. First is tell me about yourself, and second one is about your SWOT analysis. So thank you so much, madam, for this wonderful session. And I would like to thank Dr. Praveen Joshi, sir, Director, Prerna College of Commerce, for organizing this valuable session for students. And special thanks to Dr. Ujjwal Lanjewar, sir, Principal, Prerna College of Commerce, for his guidance. Thank you so much, students, for attending this session. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, students. I wish you all the best. May you all come with the flying colors. If you have any doubts or any questions which you haven't asked in this session due to any problem, you can come down to our office. Our office is located at Jagnade Square. We are starting Jagnade Square office in Nandanvan from 1st of March. So as of now, we have our office in front of Mayur Mangal Karyalay, but we are very soon shifting to Jagnade Chowk. Thank you so much, friends. See you soon. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am.